Hello students, welcome you all on this channel. I am teacher Narendra Bhagat. So let's start our lesson number 5, Shivaji's education, the next part of the previous videos. This is the third part of the video of all those videos. Now let's go into the next point that we were looking in the previous period, and in the previous video. Now we are going to see remaining points, whatever remaining points are there. So let's go to the point. So we are here on this page number 18. Just see the next point. Already we had seen this point, Shivaji's education and the achievements of Dadaji Kondev. Now in this video we are going to see the remaining points. What Veer Mata Jizabai taught Shivaji. वीर माता जीजाबाई ने शिवाजी को क्या सिखाया? जीजाबाई was not no ordinary woman. Jizabai was not an ordinary woman. She was not an ordinary woman. That you already known कि वो ऐसी सामान्य व्यक्ति, सामान्य स्त्री नहीं थी. She was the daughter of the mighty सरदार लखुजी राव जाधव. वे एक तो अपनी पिताजी की ओर से वे माइटी सरदार, एक बहुत शक्तिशाली बलशाली सरदार लखुजी राव जाधव की वो कन्या थी अपने मायके की ओर से. एंड द वाइफ ऑफ द ब्रेव एंड वैलिएंट शाहजी राजे, और अपने ससुराल की ओर से वो एक ब्रेव सरदार, एक ब्रेव, एक शूरवीर और करेजियस मैन वाइफ उनकी क्या थी? शाहजी राजे की पत्नी थी ससुराल की ओर से. So she was not an ordinary woman. Understand you students, that she was not an ordinary woman. Therefore, what Jizabai taught Shivaji, and that's why we are going to, means we are recognizing herself as a Veer Mata, as a Veer Mata. Of whose Veer Mata? Shivaji's Veer Mata. That's why. So let's go further. She had inherited the knowledge of politics and warfare from her infancy. From her childhood days, मीन्स उनके बचपन से ही उनको ये सारी नॉलेज पॉलिटिक्स की और वॉरफेयर की उनको बचपन से ही सीख मिली थी. शी हैड इनहेरिटेड, मतलब उनको बचपन से ही ये वंशानुगत ये पॉलिटिक्स की, राजकीय नीति की और वॉरफेयर की, युद्ध नीति के बारे में उनको बचपन से ही ज्ञान मिला. उनके वंश में ही उनका ज्ञान मिला. एंड in her was witnessed the confluence of martial tradition of the famous houses of the Jadavas and the Bhosles. So in her witnessed, you can witness, आप साक्षी बन सकते कि in her witnessed the to confluence, it was a combination, she was a combination of Lakhuji Rao Jadhav and from her paternal and from her husband descent ancestor, she was belonged to the Bhosles family. So that's why here this line is saying that in her was witnessed the confluence of the martial tradition of the famous houses of the Jadavas and Bhosles. She was a freedom loving person with a great sense of pride. वो जो स्त्री थी सीता माता, वो फ्रीडम लविंग पर्सन थी. ठीक है, कैसी पर्सन थी? फ्रीडम लविंग पर्सन थी. शी वॉज अ फ्रीडम लविंग पर्सन एंड ग्रेट सेंस ऑफ प्राइड, और उनकी अभिमान की बहुत ही उनको मतलब संवेदनशील व्यक्ति थी, वैसे वो स्त्री थी. शी हैड लर्न थ्रू बिटर एक्सपीरियंस, वे अपने कड़वे अनुभूति से उन्होंने ये जान लिया, उन्होंने ये सीख लिया कि दैट हाउएवर मच मराठा सरदार डिस्प्लेड वैलर, मराठा सरदारों ने कितना भी वैलर क्यों ना डिस्प्ले किया हो, कितनी भी करेजियस, कितने भी धैर्यपूर्ण काम, कितने भी करेजियस वर्क काम क्यों ना किए, युद्ध ना लड़े हो, लेकिन इट वॉज नॉट अप्रिशिएटेड इन द कोर्ट्स ऑफ द सुल्तान. लेकिन ये सभी उनके जो काम है वो सुल्तान के कोर्ट्स में उनको प्रशंसा नहीं मिलेगी, उनको अप्रिशिएट नहीं किया जाएगा. शी हैड वैलिएंटली फेस्ड द शॉक ऑफ हर फादर्स मर्डर इन द ओपन कोर्ट एट द इंस्टिगेशन ऑफ निजाम शाह. She had faced valiantly, she had faced in a valiant manner, in a courageous manner, the murder of her father in the open court upon the instigation of Nizam Shah. So Nizam Shah had already instigated to kill, to murder her father in the open court, and that's why, and
she was not demoralized. She was not demoralized against, means she was not demoralized in regard of this particular event, but she had valiantly faced this situation, and she valiantly faced the shock of her father's murder. Now she had, let's go to the next page. Now she had Now she had resolved her son Shivaji would never be engaged in the services of others. अभी उसने स्त्री इस जिजाबाई ने अभी ये रिजॉल्व कर लिया, इसको ये पूरा के पूरा उन्होंने ठान लिया, निश्चय कर लिया मन में कि शिवाजी उनका जो बेटा है उनको दूसरे की सेवा में चाकरी में नहीं लगाना है. एंड ही वुड इस्टेब्लिश द रूल ऑफ हिज ओन पीपल, दैट इज स्वराज, और वो अपने लोगों का खुद का एक स्वराज स्थापन करेगा, ऐसा उन्होंने मन में ठान लिया. सो शी वॉज ब्रिंगिंग अप शिवाजी विद दैट आइडियल, और शिवाजी को वे अपने छोटे बच्चे शिवाजी को इस कल्पना के साथ, इस आइडिया के साथ वे अपने शिवाजी को पाल पोस के बड़ा कर रहे थे. शी वॉज ब्रिंगिंग अप शिवाजी विद दिस आइडियल. अंडरस्टैंड एवरीबडी? द पीपल लिविंग इन द मावड़ रीजन, जो लोग मावड़ रीजन में रहते थे, दे वेर कॉल्ड मावड़ास, and they were loyal, they were hard working and quick footed. वे कैसे थे? लॉयल थे, हार्ड वर्किंग थे. they were loyal, hard working, quick footed, मतलब वे निष्ठावान थे और मेहनती थे, और क्विक फुटेड थे मतलब चपल थे. अपने पैरों के ऊपर जो भी भाग दौड़ के काम है उनको करने में वे सक्षम थे. नो वन कुड सरपास देम इन हार्डनेस, और उनके हार्डनेस के बारे में, उनकी जो कठिनाई में काम करने की उनकी जो क्षमता है उसके, नो वन कैन गो बियॉन्ड देयर हार्डनेस, नो वन कैन गो बियॉन्ड, नो वन कैन क्रॉस देम इन द हार्डनेस. ऐसे वे लोग थे मावड़ रीजन के. बट दे वेर हरास्ड बाय द सुल्तान, लेकिन वे सुल्तान के द्वारा हरास हो रहे थे, ओके, सुल्तान के शासन से. सो देयर आर्मीज of the Sultan, the armies of the Sultan used to plunder their villages, और जो सुल्तान की आर्मी रहती थी वे उनके गांवों को ध्वस्त करती थी, उनके गांव को लूटती थी. प्लंडर मीन्स लूटना. एंड their villages and forcing the people to abandon their places, और लोगों को ये जबरदस्ती उनके ऊपर जबरदस्ती ये थोपा जाता था कि उनके गांव छोड़कर उनको भागा जाए, ऐसा उनको जबरदस्ती उनके ऊपर जबरदस्ती की जाती थी. nobody cared for them, लेकिन उनके लिए कोई भी नहीं रोता था, कोई भी उनके लिए रोने वाला नहीं था और उनको बचाने वाला भी नहीं था. शिवाजी आर्म्ड, और इसी के मद्देनजर शिवाजी eagerly wished, Shivaji had a strong desire, and means having a strong desire. Shivaji had a strong desire to do something for this people, this poor and miserable people. और शिवाजी को इन जो गरीब और जो दयनीय लोग हैं इनको कुछ करने के लिए उनके मन में इच्छा जागी. ऑन द रिटर्निंग होम, और घर जैसे ही वापस वो अपने पुणे लौट आए, शिवाजी वुड टॉक अबाउट दिस टू हिज मदर, और शिवाजी ने अपनी माँ से इसके बारे में बात किया. जिजाबाई वुड से शिवबा, और जिजाबाई ने उनको बताया, और उनको बताती थी शिवबा, श्री रामचंद्र इज द एंसेस्टर ऑफ द भोसले, और उनको बताया कि श्री रामचंद्र भोसले के वंश है. और रामा किल्ड रावण एंड मेड हिज पीपल हैप्पी, और जैसे रामा ने रावण को मार डाला और अपने लोगों को खुशहाल बनाया, आनंदित बनाया. एंड द एंसेस्टर्स ऑफ जादव इज श्री कृष्ण, और जाधव के जो एंसेस्टर है मतलब मेरे मायके के, वे श्री कृष्ण. एंड ही किल्ड कंस एंड ब्रॉट रिलीफ टू हिज पीपल, और उसने कंस को मार दिया और अपने लोगों को भी राहत दे दी और उनको भी आनंद महसूस किया. So you are a descendant of both श्री राम एंड श्री कृष्ण. So आप उन दोनों के वंशज हो, श्री राम और श्री कृष्ण इन दोनों के वंशज हो. So you can also destroy the wicked and make your subjects happy. So तुम भी अपने कार्य से, कर्तृत्व से अपने लोगों को खुश बना सकते हो इन पापी दुष्ट लोगों को मारकर. So इस प्रकार से these words of जिजाबाई were a source of inspiration to young Shivaji. So these words of Jizabai became a source of inspiration to young Shivaji. So he would remember the brave deeds
of the heroes of the past like Rama, Krishna, Bhima, Arjun। और इस तरीके से वे शिवाजी अपने बचपन के दिनों में, अपने जवानी के दिनों में राम, कृष्ण, भीमा, अर्जुन की कहानियां सुन के गर्वान्वित महसूस करते थे। और ही थॉट ऑफ देम ऑल द टाइम, और हर समय उनका ही सोच विचार करते रहते थे, उनकी ही विचार उनके मन में चला रहता था कि इतने बड़े बड़े नायक हुए हैं जिनसे उनको प्रेरणा मिली है, और वे प्रेरणा हमेशा वो अपने मन में जागरूक करके रखते थे। वेदर अस्लीप और वेक, जैसे वे सोए हुए हो या जागे हुए हो, उनके मन में हरदम उन्हीं लोगों का जिक्र रहता था, उन्हीं अच्छे अच्छे महान नायकों के प्रति उनके मन में निष्ठा के भाव जगे, चाहे वो अस्लीप हो या सोए हुए हो या अवेकन हो। ही फेल्ट दैट ही टू मस्ट फाइट अगेंस्ट इनजस्टिस एज दे डिड। तो उनको भी वो लग रहा था शिवाजी को बचपन में कि वे भी लड़ सकते हैं ऐसे अन्यायपूर्ण वातावरण के खिलाफ जैसे ये लोग लड़े। एंड लाइक देम डिस्ट्रॉय द विक्स एंड ब्रिंग द हैप्पीनेस टू हिज सब्जेक्ट, और उन्हीं के जैसे उनको ऐसे पापी और दुष्ट लोगों को मार के, उनको डिस्ट्रॉय करके, उनको नष्ट खत्म करके अपने लोगों को खुशहाल और आनंदित, उनको राहत महसूस कर सकते हैं, ऐसा भी उनके मन में जागा। So he thought that he should become courageous and brave like these heroes of old. So he also were thinking on this line and on the same line he follows। और इस प्रकार वे भी courageous बने और brave बने, धैर्यवान और शूरवीर बने और अपने लोगों को राहत दे, ऐसे भी उनके मन में विचार आने लगे। So this was the contribution of this a great lady. This was a great lady of great man Shivaji। So this way Veer Mata Jizabai taught Shivaji। So now come to the next point, the new regimes of Shivaji। Okay, the new regime of Shivaji, शिवाजी के साम्राज्य के the new regime of शिवाजी का नया शासन, शिवाजी का नया शासन कैसा रहा, जहाँ पे उनको जहांगीर मिली वो शासन वो कैसे रहा। In Pune Zagir, the new regime of Shivaji began under the guidance of Jizabai। In Pune Zagir, पुणे के जागीर में शिवाजी का जो शासन था वो चलने लगा। शिवाजी under the guidance of जिजाबाई के गाइडेंस में। शाहजी राजे had already made the preparation for this। शाहजी राजे ने इसके लिए पहले ही प्रिपरेशन बनाई थी, उनके लिए तैयारी कर चुकी थी। When शाहजी राजे sent Shivaji from Bangalore to Pune, he sent some very powerful and prestigious people with them। So how was it preparation made for Shivaji's regime? So when Shivaji and her mother were sent from Bangalore, Shahaji sent all the prestigious and the powerful people with them। तो उनके साथ कुछ पावरफुल, शक्तिशाली और प्रेस्टिजियस, प्रतिष्ठावान लोगों को उनके साथ भेजा। दे वेर सम्राज नीलकंठ पेशवे, उनके नाम देखिए यहाँ पे लिखे कौन कौन लोग उनके साथ भेजे। सम्राज नीलकंठ पेशवे, बालकृष्ण हनुमंत मुजुमदार, मानकोजी दहातोंडे सरनोबत, रघुनाथ बल्लाल सबनीस and Sonopant Dabir। These were the people to whom Shahaji Raja sent with Shivaji and Jizabai while sending them from Bangalore to the Pune। So these were all able men fit to administer an independent kingdom। और ये सभी लोग अपनी प्रशासन एक इंडिपेंडेंस, स्वतंत्र साम्राज्य का भागदौड़ संभालने के लिए सभी लोग फिट थे, बिल्कुल एबल ऐसे लोग थे, सक्षम ऐसे लोग थे। शाहजी राजे हैड स्पेशली डेप्यूटेड देम टू पुणे टू हेल्प। शाहजी राजे ने उनको स्पेशली वहां पे डेप्यूट किया। क्यों? क्योंकि शिवाजी को वहां पे मदद करने के लिए शाहजी ने उनको स्पेशली वहां पे डेप्यूट किया। Shivaji governed his Jagir efficiently। To govern Shivaji's Jagir efficiently, that's why Shahaji deputed all these efficient and fit and able people to help Shivaji govern his Jagir efficiently। And with their help, और उनकी मदद से Shivaji began to administer his Jagir। और शिवाजी ने अपनी जागीर का एडमिनिस्ट्रेशन, प्रशासन देखने को
शुरू किया to attend the people's grievances and this way to attend the people's grievances, उनकी लोगों की समस्या, उनकी तकरार सुनने लगे शिवाजी राजे, and those who inflicted injustice upon the riots were punished, और जो लोग अपने रैयत के ऊपर इंजस्टिस को जुल्म ढाते थे, जिनको अन्याय करते थे, उनको पनिश किया गया। इन अ वे शहाजी जागीर वॉज अंडरगोइंग अ ट्रांसफॉर्मेशन, और इस तरीके से द जागीर विच वॉज रनिंग अंडर शिवाजी राजे, सो दैट जागीर वॉज शहाजी राजे। ओके, वो जागीर कौन सी थी? पुणे की जागीर शहाजी राजे की। बट हु वॉज गवर्निंग ओवर दैट जागीर? शिवाजी राजे वॉज गवर्निंग ओवर द जागीर। So this way शाहजी राजे जागीर was undergoing a transformation, इस तरीके से शाहजी राजे की जागीर ट्रांसफॉर्मेशन हो रही थी, उसका रूपांतरण हो रहा था, एक बुरी जागीर से एक अच्छे जागीर में उसका रूपांतरण हो रहा था। द मावड़ास गॉट अ ग्लिम्स ऑफ द फ्यूचर स्वराज, और इस तरीके से द पीपल दोज हु वर रिसाइडिंग द रीजन ऑफ मावड़, दे गॉट अ ग्लिम्स ऑफ द फ्यूचर स्वराज, और भविष्य में आने वाले स्वराज की उनको झलकियां दिखने लगी। ग्लिम्स मीन्स झलकियां, छोटा सा ए ब्रीफ लुक, ग्लांस, दे इट वाज एज इट वेयर द डॉन ऑफ स्वराज, और वे ऐसा ही था जैसे नए स्वराज की नई सुबह हो। इट वाज द डाउन ऑफ स्वराज एज इट वेयर द डाउन ऑफ स्वराज, ऐसा लग रहा था कि ये किसी स्वराज की नई सुबह की एक किरण हो। नाउ कम टू द नेक्स्ट and last point of this lesson, Shivaji's marriage. In those days people married at a very early age, और उन दिनों लोग बहुत ही कम समय में अपना कम आयु में उनकी शादियां होती थी। So जिजाबाई said, और जिजाबाई बोली, we should get married, we should get Shiva married, हमें भी शिवा की शादी करनी चाहिए। Then a search for a suitable bride for Shiva began, और इसीलिए शिवा की लिए एक अच्छी वधु को देखने का प्रारंभ शुरू हो गया। Soon she found the girl she wanted, और इस प्रकार से जिजाबाई को जो गर्ल्स चाहिए, जो लड़की चाहिए थी शिवा के लिए, वो मिल गई। एंड हर नेम वाज सईबाई, और उनका नाम सईबाई था। सईबाई केम फ्रॉम निम्बाड़कर फैमिली ऑफ पलटन, और सईबाई पलटन के निम्बाड़कर फैमिली से आती है। एंड देयर मैरिज वाज सेलिब्रेटेड विद ग्रेट स्प्लेंडर, और with in a splendid manner, the marriage of Shiva and Saibai Nimbalkar, who belongs to Nimbalkar family of Fulton. Their marriage was celebrated with a great splendor and in a splendid manner, with very pomp and with very splendid manner. This way we have completed this lesson, explanation of this lesson. If you need any, if you have any query or question in your mind, so you can ask me in the comment box. And if you like this video, don't forget to hit the like button and share this to your friends, and subscribe this channel properly and hit the bell icon. Understand, to get the messages and notification. Understand everybody? Thank you for watching this video.